Okay, good morning, all of you. Uh, 36 was the last solve, right? But that is it. 36 was the last sum. Today, what we'll do is we'll focus on IRR calculations. ठीक है? I'll teach you how to calculate IRR. यहाँ देखिए. Um, Let me see if I have some specific sums available. अपने ग्रुप पे एक काम करते हैं. We'll make an extra sum. Wait, hold on. File for printing, service tax, capital budgeting. Okay, right. Calculate IRR in following cases. ऐसा लिखो. थ्री 240 6 लाख 9 लाख बराबर है. Initial investment.
कॉपी कर लिया है सम? अब ध्यान देकर सुनो, हाउ टू कैलकुलेट द IRR. याद है अपन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग मनी टुडे एंड यू आर गोइंग टू गेट इक्वल अमाउंट इन फ्यूचर. इक्वल तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, अनइक्वल मिलेगा. बट वेन यू इन्वेस्ट, देखो क्या, आई विल टेल यू व्हाई वी विल यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. इमेजिन यू आर अ बैंक, नॉट येस बैंक. हाँ, यहाँ देखो. ओके, यहाँ देखो प्लीज. एंड यू आर गिविंग अ लोन to me, say, and I am capable of repaying you in EMI. The EMI will be worth say you gave me a loan of 3 lakh, and the EMI that I am repaying you is of 78,000 rupees per annum. Clear? For how many years? 6 years. So what is the rate of interest? You understand this? So this has all the feature of what we are doing here, except for one thing. The amount is not equal. The amount is unequal. The amount we are getting here is unequal. Yes or no? यहाँ पर भी क्या कर रहे हो? You are investing 6 lakh today, and you are earning money in future for 6 years. Correct? अरे yes, that money is unequal. That I am agreeing on. और यहाँ पर भी क्या कर रहे हो? You are giving loan today as a bank, and you're going to get this returns in future for 6 years. सेम टू सेम है कि नहीं है? द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे अमाउंट सेम है और यहाँ पे अमाउंट अलग अलग है. क्लियर? तो दैट इज आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी. आई टेल यू व्हाई विल यूज इट अगेन. यू कैन एक्चुअली, द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट इज assume any discounting factor. Assume any discounting factor and start solving this. Assume any discounting factor and start solving this. Like, चलो ठीक है, 10% लेके सॉल्व करो. एनपी पॉजिटिव आया तो गो टू 12%, फिर पॉजिटिव आया तो गो टू 15%, फिर पॉजिटिव आया तो कीप गोइंग अहेड टिल यू गेट नेगेटिव. अरे बट इफ यू डिस्काउंट 6 years एवरी टाइम फॉर सो मेनी टाइम्स, यू विल बी बैफल्ड यार, आंसर कब आएगा पता ही नहीं अपने को. Clear with this? So what we do is, instead of doing it all 6 years literally with actual numbers, what we do is we convert them to annuity and then get the missing R on calculator. That will be our approximation, and then we'll do the actual calculation for that approximation. नहीं समझ में आया? टेंशन मत लेना. अभी के लिए काम करते हैं. I'll tell you how to do it. यहाँ देखिए अभी. लुक यार, ये कितना है बताओ? 9 लाख टोटल. हाउ मच? 930 ना. सपोज करो 930 का टोटल जो है वो आपका 6 years में है. तो व्हाट आर एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज? क्या? टोटल कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. करेक्ट? तो एक्स का कितना है? 930 डिवाइड बाय 6. वाई का कितना है और जेड का कितना है? वाई का कितना है? 9 लाख डिवाइड बाय 6. और जेड का कितना है? 9 लाख डिवाइड बाय 6. कितना आ रहा है? 1 लाख, 1,50,000, 1,50,000. तो what we'll assume is, instead of earning this money, क्या? Instead of earning this money, we are earning 1,55,000 per annum. You understand this? Instead of earning this money, we are earning 1,50,000 per annum. Instead of earning this money, we are earning 1,50,000 per annum. You get it? If we do that, we can apply this formula ना, क्या? present value of annuity is equal to annuity into present value interest factor for annuity at R% for n years, where this R is missing. तो इसका फायदा पता है क्या होगा? इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल 6 years on paper for multiple discounting factor, you can get the missing R by doing number calculation on the calculator, and that will become your range that has to be used to calculate the actual IRR. समझ में आया? नहीं समझ में आया? टेंशन मत लेना. See what I'm doing. In first case, in case of X,
In case of X, what are you investing today? 6 lakh. That becomes your present value of annuity. Yes. What are you getting every year? 1,55,000 per annum. Into present value interest factor for annuity at R% for 6 years. Correct? So, can I say therefore present value interest factor for annuity at R% for 6 years is equal to what? 6 lakh divided by 1,55,000. कितना आ रहा है? 3.87. Now, take up a calculator. Assume that the interest rate involved is 10%. Take up a calculator. Now give me present value interest factor for annuity at 10% for 6 years. Do you know how to calculate it? 1 divided by 1.1, hit equal to 6 times and hit GT. कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 6 times, हाँ? अरे कितना आ रहा है? वो कुछ आता भी है क्या? 4.35. पक्का हरे को उतना आ रहा है? हम लोग गाली देना पड़ता है काम कराने के लिए यार. Raised to 6. फोर पॉइंट थ्री फाइव. हाँ, भरोसा तुम्हारी बात पे है नहीं मेरे को, इसलिए मेरे को वापस वेरीफाई करना पड़ा. 4.332, 3552. Now, what do you want? You want 3 point. अच्छा, give me the exact number here, ना? Give me 4 decimals. 6 lakh divided by 1,55,000. 8709. Now listen, at 10% you got 4.3552. You want lower number, so you will do what? What will you do? You will go to lower number or higher number? Will you go to 9%, 8% or 11, 12, 13, 14? हाँ, अभी लोग कंफ्यूज है. फायदा क्या हुआ इतना टाइम वेस्ट करके? 1 महीना हो गया आपने वो घसते हुए इस टॉपिक को. क्या करना है बोलो? हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर ना. एज आई गो ऑन टू हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर आई गेट अ लोअर नंबर. तो डू वन थिंग, कैलकुलेट PVIFA at 10%, at 12% for 6 years. निकालो, फटाफट निकालो. डोंट लुक एट माय आंसर. आई एम गेटिंग. अभी भी ज्यादा आ रहा है ना? डू वन थिंग, ट्राई 15%. थ्री पॉइंट 78. 7844, 7845 आएगा एक्चुअली में. ओके, 7845. यहाँ पे 87 है, तो ट्राई 14%. भैया अब हम लोग थोड़ा आगे आ गए ना. $3.8887.
तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब देखो फायदा क्या हुआ, इमेजिन करो आपको ये जो 4 कैलकुलेशन है, ये 6 नंबर के लिए अलग अलग करनी पड़ती, टाइम होता ना वेस्ट। पर अब क्या हो गया, अब आपको कैलसी पे आंसर मिल गया कि द आंसर इज 14% अप्रोक्सीमेटली। दिस अप्रोक्सीमेशन विल नॉट वर्क ऑलवेज। व्हाई? अरे बिकॉज दिस 3.887 या फिर 3.8709, दैट मीन्स द आंसर इज बिटवीन 14 and 15%। दैट इज ट्रू फॉर गेटिंग 1,55,000 per annum constant or these amounts. What is it true for? What is it true for? Getting 1,55,000 per annum constant, या फिर क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको यार, मेरे को जरा ऐसे में सारा जरा इंपॉर्टेंट है ये, होल्ड करो खाली मुझे एक मिनट दो। SY वन सेकेंड ना। देखो इधर मैं क्या बात कर रहा था, I getting 1,55,000 constant per annum or I getting these numbers, is it the same thing? दोनों केस में मुझे आ तो कितना रहा है, इन बोथ द केसेस आई एम गेटिंग 9,30,000 in 6 years. अरे yes, but is it same or different? अरे it is different ना, नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करते हैं, give me 930 today, I'll give you 155 tomorrow in next 6 years. चलेगा आपको? नहीं चलेगा ना, तो इट सेम? नॉट, इट्स नॉट सेम। तो मुझे इतना बताओ, व्हाट इज मोर बेनिफिशियल, गेटिंग 1,55,000 कांस्टेंट पर एनम और गेटिंग लोअर मनी इन द इनिशियल ईयर्स एंड गेटिंग हायर इन द एंडिंग ईयर्स? व्हाट डू यू लाइक टू हैव? आई वुड लाइक टू गिव यू 9,30,000 rupees. Would you like to have 930 full today or 155 constant per annum or higher money in the initial years, lower in the later years, or lower in the initial years, higher in the later years? समझ में आया? पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, टेक 930 टुडे इटसेल्फ इन वन गो। दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ, कि आई गिव यू 155 पर एनम कांस्टेंट पर एनम फॉर 6 years। ये तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है टेक लोअर नंबर इन द इनिशियल ईयर्स, से टेक 30,000 in the initial year and 1 lakh in the next year, and then in the ending years take 3,60,000, something like that. या फिर उल्टा, take higher number in the initial years 360, 240, and then lower number in the later years, say 30. What is beneficial for you? Sir, this is most beneficial for me, I will go for this. चलो इसको आउट ऑफ पिक्चर कर देते हैं, ठीक है क्या, इसको आउट ऑफ पिक्चर कर देते हैं। तो आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शन व्हाट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू? अरे दिस वन ना, गेटिंग हायर मनी इन द इनिशियल ईयर्स। अरे यस और नो? बट जो अप्रोक्सीमेशन आया है 14% का, जो अप्रोक्सीमेशन आया वो किसके लिए आया है? इसके लिए आया है ना। दिमाग चलता है क्या? सिंपल पैसे की बात है यार, तुम लोग सोचते हैं रॉकेट साइंस है। मनी किसको प्यारा नहीं है? मनी हर एक को प्यारा है। बच्चा भी आंसर करेगा जो आप आंसर कर रहे हो। इफ आई मेक अ 7th क्लास स्टूडेंट सिट हियर ना, ही विल आंसर सेम वे द वे यू आर आंसरिंग। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्वड हियर, इट इज सिंपल मनी लैंग्वेज। क्लियर? तो डोंट टेक इट सो टफ के बहुत टफ पढ़ा रहा है सर कुछ, एकदम सिंपल चीज कर रहे हैं हम लोग। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो ठीक है क्या, बच्चा भी आंसर देगा इसका। सुनो, तो इसीलिए जो हमने अप्रोक्सीमेशन निकाला है, किसका निकाला है? 155 पर एनम का निकाला है। अब पैटर्न देखो, पैटर्न समझ में आ रहा है? पहले बात ये कि अप्रोक्सीमेशन निकाला क्यों? अरे ये 4 कैलकुलेशन करने पड़ते हैं ना आपको अलग अलग, ये वाले 4 कैलकुलेशन बार बार एनपीवी वाले, तो दिमाग खराब हो जाता। अब कम से कम 14% का अप्रोक्सीमेशन तो आया है। अरे यस और नो? अब वो अप्रोक्सीमेशन काम करेगा नहीं करेगा वो मालूम करना पड़ेगा आपको। इस केस में काम शायद ना करे, बताओ क्यों? क्योंकि यू आर गेटिंग हायर मनी इन द लेटर ईयर्स। दिखता है क्या ये दो अमाउंट? यू आर गेटिंग हायर मनी इन द लेटर ईयर। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज वाई विल यू बी अर्निंग 14
और लेस देन 14 और मोर देन 14, यू विल बी अर्निंग लेस देन 14 ना. तो पता क्या करने का, आप एक बार अप्रोक्सीमेशन आ गया, उसके बाद में बिकॉज द कैश इनफ्लोज आर हायर इन द लेटर ईयर्स, डोंट स्टार्ट विद 14, स्टार्ट विद लेस देन 14. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है हाउ माई ब्रेन इज फंक्शनिंग? Start with less than 14. So what should I start with? Start with 12. If you get positive, go to 13. If you get negative, go to 11. You get it? तो करना क्या, टेबल ऐसे बना के आना है एग्जाम में. ईयर, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट, मेक 3 कॉलम्स ईयर. या फिर एक काम करेंगे, विल मेक कॉमन थिंग्स फर्स्ट. ईयर, कैश इनफ्लोज, present value, sorry, discounting factor at, we'll start with 12%, then we'll leave 2 columns blank depending on if we get negative or positive. We'll leave 2 columns blank, and then we'll get PV at 12%, and then based on 2 we'll fill it up here. Get it? So now what are the cash flows? 30, 120, 180, 240, 3. देखो इधर, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6. What are the cash? Again, what are the cash you wrote down na? 30,000, 1,20,000, 1,80,000, 2,40,000, 3,00,000 and 60. Clear? Get discounting factor at 12%. 0 point how much? आ रहा है क्या ये वैल्यू? 0.8929, then 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674, 0.5066. करेक्ट. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और टोटल निकालो इधर. यह आ जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. व्हाट आर वी इन्वेस्टिंग टुडे? व्हाट आर वी इन्वेस्टिंग टुडे? 6 लाख ना. यह आ जाएगा आपका एनपीवी. ये व्हाट इज आईआरआर? एट विच एनपीवी इज 0. यस. ओके. Okay, we are very near. We are at 6,03,719. Okay, I am getting 26,786. 26,786. 95,663. 128,120. 152, 524. हर एक को इतना आ रहा है क्या? 170, 228 and 30398. करेक्ट. इतना आ रहा है हर एक को. तो 7 + 6 9, 9 4 13 13 and
13 and 16. 13 and 16 is 29. हाँ 603719. ये आंसर है अपना. ठीक है, तो आई एम गेटिंग 3719 पॉजिटिव. यू गेट इट. तो क्या करेंगे, वी गो टू 13%. समझ में आ रहा है? वाई 13 रे, वे वेरी नियर टू जीरो. गेट इट. देखो अपना आंसर कितना आ रहा था, 14 आ रहा था, बट 14 तक गए नहीं अपन. 14 के पहले अपना आंसर आ जाएगा, 13 पे अपना आंसर आ जाएगा. क्यों बताओ? क्योंकि ये जो आंसर था वो 1,55,000 कांस्टेंट पर एनम के लिए था, जबकि ये जो आंसर आ रहा है अपना, जो अपना वैल्यूज था वो हायर इन द लेटर ईयर्स है, तो वी आर अर्निंग लेस मनी. यू अंडरस्टैंड दिस? दिखता है अपन दिमाग का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं. यू नीड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस, अदरवाइज कुछ समझेगा नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ. जो अपन लास्ट एक महीना गलाया है ना, वो काम आ रहा है इधर अपने को. क्लियर? तो देखो इधर 13% निकालो, अपना आंसर आ जाएगा. यू गेट इट. यहाँ अगर मेरे को नेगेटिव आया होता मैं क्या करता, आई वुड हैव गॉन टू 11 या 10. क्लियर विद दिस? चलो 13 निकालो, 13 पे आंसर आ जाएगा आपको. टू 6,549. First, let me write 0.8850. 8850. 0.7831. 6931. 6113. 6133, sorry. 0.5428. 0.4803. आपके और मेरे आंसर में फर्क हो सकता है 2-3 रुपए का, क्योंकि मेरा राउंडिंग ऑफ नहीं किया मैंने, आपने राउंडिंग ऑफ किया रहेगा. करेक्ट और नॉट? 13% में पीवी निकाल लो. काम करता हूँ मैं भी ऐसे करता हूँ. 0.8850, 0.7831, 0.6931, 0.6133, 0.5428, 0.4803. आई एम गेटिंग. अच्छा एक और यहाँ भी मैं ठीक कर देता हूँ, रुको एक मिनट. I'm getting 0.8929, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674, 0.5066. हाँ एक्चुअली में 3711 आया था, डबल वन आएगा आंसर. वेट, लेट मी करेक्ट इट, ताकि आपका और मेरा आंसर सेम आए, इसीलिए कर रहा हूँ मैं ये. ठीक है, वरना जो पहले लिखा था वो करेक्ट था. 26,787, 95,664, 128, 124, 1525520, 152,520, 170,220, 30,396, 60,3711, 3711, 26,550, 93,927, 972, sorry, 124,758, 147, 192, 162840, 28818,
584130. 6 लाख माइनस करना है इसमें से. 15870. तो जो आपको चाहिए था मिल गया ना. 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव. यस और नो. नाउ यू कैन डू व्हाट? इंटरपोलेशन एंड गेट द आंसर. करेक्ट. तो देखिए इधर, हाउ विल यू इंटरपोलेट? व्हाट डू यू नीड? यू नीड 6 lakh. At 13%, what are you getting? 603711. At 12%, what are you getting? 1 second. 1 second, 1 second. It is 12 and 13, na? At 12, we are getting what? 603711. At 13%, what are you getting? 584130. करेक्ट. चलो आंसर निकाल लो. अभी क्या बचा है इसमें? ए व्हाट इज 13 minus 12? It is 603711 minus 584130. And you want x. Suppose x कितना चाहिए? It is 603711 minus 6 lakh. तो what are you getting? Therefore 1 is equal to, माइनस करो कितना आ रहा है ये? 1519 581. एंड x के लिए कितना आ रहा है? 3711. Therefore x is what? X is 3711 divided by 19581 into 1. समझा? कितना आ रहा है बोलो? 0.1895. Therefore IRR is equal to 12 plus 0.1895. मान लो 12 कैसे आ रहा है? अरे x is this. 12 तो यहाँ तक आ गया था ना. तो कितना आ गया IRR? 12.1895%. Are we clear? समझ में आया? How to get the IRR? क्लियर? चलो आपको इसका आ जाएगा स्क्रीनशॉट ग्रुप पे. ठीक है, सुनो इधर. अभी अपने को ऐसा ही काम वाई का करना है. चलो खुद शुरू हो जाओ. डू इट योरसेल्फ. और याद रखो वाई में क्या हो रहा है? यू गेटिंग हायर नंबर इन द इनिशियल ईयर्स. तो जो भी अप्रोक्सीमेशन आएगा ना, उससे 2% ऊपर जाके यूज करना आंसर. समझा? जैसे यहाँ पे क्या करोगे? 9 लाख करोगे. 9 लाख डिवाइड बाय 6 करोगे तो 1,50,000 आया. बाद में 1,50,000 डिवाइड बाय 6 बाय 150 करोगे, कितना आएगा? 3.6 बाय 150 इज 4 आएगा. 4 आया. अब 4 कहाँ पे आ रहा है बताओ जरा? 4 आ रहा है 12 और 15 के बीच में. बराबर है कि नहीं है? 12 हुआ, 13 पे आ जाएगा. 4 13. यू विल गेट आंसर बिटवीन 12 एंड 13. बट शुड यू स्टार्ट विद 12 एंड 13? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? शुड यू स्टार्ट एट 12 एंड 13? नो, यू शुड रादर स्टार्ट एट 15. पॉजिटिव आया तो और आगे बढ़ जाएंगे, और पॉजिटिव आया तो और आगे बढ़ जाएंगे. यू अंडरस्टैंड दिस? चलो शुरू हो जाओ. जो अभी देखो मेरी बात सुनो, जो अभी इतना मेहनत किया ना इधर, वो सब करने का जरूरत नहीं है. पहले से आंसर निकाल चुके हो. खाली पता है किसका मेहनत करने का? अपने को ये लिखने का है. यहाँ अपने को 4 आ जाएगा, ये पता है अपने को. वी नो दिस. डायरेक्टली एक काम करो, PVIFA at R% for 6 years is equal to, ये डायरेक्ट लिख दो. ये लिख दो डायरेक्टली. ये यू नो सम प्रोफेसर्स कॉल इट व्हाट? जिनको टाइम वैल्यू बंदे नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्टली जाते हैं कैपिटल बजटिंग के ऊपर. यू नो व्हाट दे कॉल इट? दे कॉल इट फेक पे बैक पीरियड. दे कॉल इट व्हाट? फेक पे बैक पीरियड. और कितने सारे बुक्स में लिखा हुआ है ये. द वर्ड यूज इज फेक बैक पीरियड, बट एक्चुअली में है क्या? दे आर कन्वर्टिंग इट टू एन्युटी एंड गेटिंग द अप्रोक्सीमेशन. But we have taken 1 month to study time value of money, so we know what annuity is. Clear with this? तो सुनो इधर क्या लिखोगे? डायरेक्टली लिखो PVIFA at R% for 6 years. जो बोलता हूँ लिखो फटाफट. फॉर प्रोजेक्ट Y. जगह छोड़ दो X का. X तो आप आपने कॉपी कर लेना. अभी Y का खुद करो. डू इट योरसेल्फ. PVIFA at R% for
6 years इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड 150 है ना, इज इक्वल टू 4 आ गया। अब सुनो, ये पहले से कॉपी किया हुआ है अपन लोग ने, बात बराबर है। तो 4 किस पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है 4 ना, 12 पे 4 आ रहा है, 13 पे 4 से नीचे आ जाएगा, 13 पे इट विल बी लेस देन 4, यस। तो विल स्टार्ट विद व्हाट, विल स्टार्ट विद 15, गेट इट। अब एक काम करो, मेक द सेम स्टेटमेंट लाइक दिस, मेक द सेम स्टेटमेंट लाइक दिस, year cash inflow discounting factor at 15%, leave space for 2 discounting factors more, PV at 15%, निकालो कितना आ रहा है। चलो शुरू हो जाओ। होने दो ना, क्या हो गया, सॉरी 660 है क्या, हाँ अरे बाप, थैंक यू बताने के लिए मैडम, थैंक यू। तो 660 डिवाइड 150 करो तो अपना आंसर अलग आएगा, थैंक यू बताने के लिए। इट विल बी व्हाट, PVIFA at R% for 6 years is equal to 6,60,000 डिवाइड बाय, जरा बदलेगा आंसर थैंक्स टू हर न्यू करेक्शन। कितना है बोलो फटाफट, 4.4 आ रहा है, ओके गुड, 4.4 आ रहा है तो 10% पे आ रहा है, 4.4 10% पे आ रहा है ना, तो डोंट ट्राई एट 10%, ट्राई एट 13%, ट्राई 13%। मेरे को लगता है उसमें भी आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, जितना मुझे पता है। 3 का जगह छोड़ देना, लीव स्पेस फॉर 3, I think at 13 also will get positive only, 3,60,000, 240 dash dash 180 है ना, and then 120, अरे वाह, somehow these are working perfectly यार। मेरा मतलब कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होते जा रहा है मेरा। नॉर्मली इतना अच्छे से होता नहीं है, मतलब क्योंकि अब IRR निकालना इतना आसान नहीं है, बट यहाँ अपने को आंसर आ रहा है। वी आर गेटिंग 6,60,000 है ना इनिशियल कैश आउटफ्लो, वी आर गेटिंग एट 13%, वी आर गेटिंग 6,61,000, तो वी आर वेरी नियर। दैट मीन्स व्हाट, विल ट्राई 14% एंड गेट द आंसर, गेट इट। तो देखो इधर, सो यू नो हाउ अप्रोक्सीमेशन इज वर्किंग हियर, अरे यस और नो, अरे आवर अप्रोक्सीमेशन वर्कड एट व्हाट, इट वाज वर्किंग एट 10%, दिखता है क्या इधर, the answer was we were getting answer near 10%, but we tried 13, why, you understood, okay? So try 13%, get the answer,
13 14 पे आंसर आ जाएगा. चलो एक काम करो, खुद ही निकालो, मैं नहीं निकालूंगा. Seven, 8, 3, 1, 6, 9, 3, 1, 6, 7, 5, 4, 8, 0, 3. अरे मेरा आंसर आ गया, बातें कर रहे हो बैठे बैठे, जल्दी करो.
648,636. बता रहा हूँ मैं भी तो कर रहा हूँ. I'm getting 13.142. 142 आ रहा है मेरा तो. 13.1422. Here is it. डायरेक्टली कर दिया मैंने ऐसे इंस्टेड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. चलेगा ना? वहां सिखाया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर. ये सिखाया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये वैसे ही किया है. दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस इंटू 1. y इंटू 1 डिफरेंस इज 1%. चलो अब z करो. किसका वेट कर रहे हो? एक और बाकी है ना, वो भी करो. चलो फटाफट. Even that was for, that is how much? 720. हाँ, याद रखो. That investment is 720. कितना आ रहा है? 720 है ना यहाँ पे. 4.8. And what values you were getting earlier? 4.8 तो यहाँ आ ही नहीं रहा था अपने को. We want higher value. We'll go to lower discounting factor. Hey, try 9% या 8%. Try 8%.
at 8% for 6 years. Try. कितना आ रहा है 8% पे आंसर? 4.6. Is it? Try 6%. Yeah, try count. Try 7%, not 6. Try 7%. 4.7. 4.7. 7 exact. 7665. तो 7665. यहाँ ध्यान देना, वी आर वेरी नियर नाउ. 7% पे आंसर आना चाहिए. तो सुनो, और कैश फ्लो क्या है देखो, 120, 180, 120 ऐसा है ना. 3 लाख एंडिंग में जाता है, एंडिंग में. तो आई वुड से आई वुड स्टार्ट विथ 6%. And if the answer is still negative, I'll go to 5, 4. If the answer is positive, then I'll go ahead. I mean, you got the whole exercise, correct? So let us try 6%. So it's 6, yeah, 6%. Let us try 6%. What's the initial investment? 720 ना? 720 है. Okay, okay. 9434. 8899. 0.8990 कर दो उसको. 837. 8396. 7921. 7921 आएगा. 7473. 0.704. 7050. थोड़ा मेहनत जाएगा इस बार, मेरे को लग रहा है अपने को. डायरेक्ट आंसर नहीं आने वाला. 0.9434. 0.89. 0.8396. 0.7921. 0.7473. 0.7050. Okay. PV at 6%. 113. 208. 160200. 100752. 237. 630. 89697. 89676. 42300.
743,766. 743,766. 720 is the initial investment, correct? So NPV is 23,766 positive. करेक्ट. ओके, तो अपने को बहुत पॉजिटिव आ रहा है, तो लेट अस ट्राई 8%. लेट अस ट्राई 8%. अरे वाह, 8 बहुत नेगेटिव आ गया अपने को आंसर. नाइन फाइव 926.926.8573 7938 753 735 sorry 6806 6302. Okay. Eight five seven 7938 735 6806 6302. One 54314 95256 220500 81672 37812. नाइनटीन 320 19326 नेगेटिव. अब सुनो, दो ऑप्शन है आपके पास. पहला ऑप्शन है कि यहीं से एरर निकाल लो. द आंसर विल बी लेस एक्यूरेट बिकॉज डिफरेंस इज 2. दूसरा ऑप्शन है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 7% निकाल लो and then compare between 7 and 8. Are we clear? या 6 and 7. अगर 7 पे पॉजिटिव आया तो विल कंपेयर 7 and 8. अगर 7 पे नेगेटिव आया तो विल कंपेयर 6 and 7. क्लियर विद दिस? यानी कि अगर एग्जाम में टाइम नहीं है, टाइम का बहुत कमी है एग्जाम में, तो नो नीड टू डू 7%. डायरेक्टली 6 और 8 पे आंसर निकाल लो. थोड़ा बहुत मार्क्स तो आ जाएगा, थोड़ा आंसर तो पूरा कम से कम होगा, बट टाइम अवेलेबल है तो 7 पे कर लो. क्लियर? But at least with approximation you got where to start from. Yes or no? I'm getting positive answer. 721 perfect आ रहा अपने को. 79346 8735 873 8734 86 8163 7629 713.
0.93468734 8163 7629 7130 666 8734 8163 7629 112152 157212 97956 228870 85560 39978 721728 ए विल कंपेयर 7 and 8 क्लियर IRR क्या आ जाएगा 7% प्लस 721728 minus 720 divided by 721728 minus 700674 into 1. We're getting 7 point, ये आ रहा है 0.0821 0821 ये आपका आ गया IRR क्लियर तो आई होप यू गॉट द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द IRR एंड व्हाई आई केप्ट इट फॉर लास्ट बिकॉज इसके लिए आपको फुल नॉलेज चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लियर So now with this I call the chapter closed. You already have in your group the syllabus. Time value of money कुछ बाकी है तो देखो except for bond valuation. देख लो जरा एक बार. At the very beginning I gave you the syllabus. ये रहा मेरे पास है. Concept, present value, annuity, technique of discounting, technique of compounding, bond valuation, YTM. सिर्फ बाकी है bond valuation और YTM बाकी है. Bond valuation और YTM. Let us start with that. तो next chapter में starting with this bond valuation. उसके ऊपर मैंने वो ज्ञान देके रखा है पहले से. याद है क्या?
जा रहे घर पे, काम पे? हाँ, सैटरडे जा रहा है ऑफिस को? जाओ जाओ, संडे का हमारा भी ऑफ रहता है। कहाँ गया वो यार एक्सप्लेनेशन? डिड आई टेल यू आफ्टर परपेचुइटी बिफोर परपेचुइटी? कब बताया था मैंने आपको? आफ्टर परपेचुइटी या बिफोर परपेचुइटी? नहीं आ रहा इधर तो यार। चलो एक काम करेंगे, फटाफट कर ही देंगे एक बार।